Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the fourth session of data communication. And the topics covered are introduction of data link control structure, error detection, single parity check, cyclic redundancy check, two types of error are possible, error control steps. First one is introduction. The main task of the data link layer is to provide error free transmission. जो डेटा लिंक लेयर का मेन काम होता है वो होता है कि हमारे डेटा का ट्रांसमिशन एरर फ्री हो, मीन्स उसमें कोई भी एरर ना आए. The data link layer creates and recognizes frame boundaries. This can be accomplished by attaching special bit patterns to the beginning and end of the frame. डेटा लिंक लेयर एक और काम परफॉर्म करती है, वो डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है और फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो स्पेशल बिट्स का यूज़ करती है. मतलब फ्रेम के स्टार्ट होने पे वो कुछ बिट्स ऐड करती है और उसके फिनिश होने पे कुछ और बिट्स ऐड करती है, जिससे कि फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है. द डेटा लिंक लेयर कंस्टिट्यूट्स द सेकेंड लेयर ऑफ हिरार्किकल OSI मॉडल. डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की सेकेंड लेयर होती है. The data link layer together with physical layer provides a data link connection for reliable transfer of data bits over an imperfect physical connection between two adjacent nodes. Data link layer physical layer के साथ वर्क करती है डेटा को रिलायबली दूसरे सिस्टम पर सेंड करने के लिए. To see the need of a data link control, we list some of the requirements and objective for effective data communication between two directly connected transmitting receiving stations. इसके लिए हमें नीचे वाली फॉलोइंग डेफिनेशंस को पता होना चाहिए. मीन्स इस डेटा लिंक लेयर को समझने के लिए हमें फॉलोइंग डेफिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए. First one is frame synchronization. Data are sent in blocks called frames. The beginning and end of each frames must be recognizable. Data को send करने के लिए हमें different frames में divide करना होता है और frames को हम easily identified कर सकें, ऐसा कुछ mechanism उसमें use करना होता है. After that, flow control. The sending station must not send frames at a rate faster than the receiving station can absorb them. ये नहीं होना चाहिए कि जो सिस्टम डेटा को सेंड कर रहा है वो इतनी फास्टली सेंड करे कि रिसीविंग सिस्टम उसको ईजिली रिसीव ना कर सके, नहीं तो हमारे पैकेट लॉस्ट हो जाएंगे. Error control. Any bit error recognized by the transmission system must be corrected. और अगर हमारे डेटा में कोई एरर आ रहा है तो उसको करेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो रिसीवर को करप्टेड डाटा रिसीव होगा. Addressing. On a multi-point line such as a local area network, the identity of the two stations involved in a transmission must be specified. Means अगर हम किसी नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट सिस्टम्स को एड्रेस प्रोवाइड करना होता है ताकि हम सिस्टम को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकें. कंट्रोल एंड डेटा ऑन सेम लिंक. इट इज यूजुअली not desirable to have a physical separation communication path for control information. Accordingly, the receiver must be able to distinguish control information from the data being transmitted. अगर डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक साथ सेंड की जा रही है तो सिस्टम को कैपेबल होना चाहिए कि वो डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट कर सके. Link management. The initiation, maintenance and termination of a sustained data exchange requires a fair amount of coordination and cooperation among stations. और अगर हम करेक्ट फॉर्म में डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं तो
डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना मस्ट है, नहीं तो हमारा डेटा रिलायबली सेंड नहीं होगा। प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ दिस एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड, और हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है किसी डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सेंड करने के लिए। A data link protocol that specifies these requirements is rather complex affair, और इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज की जाती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। फर्स्ट वी लुक इनटू द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हम एरर को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसको कैसे फ्लो कंट्रोल करते हैं। Then we look at the most important example of a data link control protocol, HDLC, High Level Data Link Control. This protocol is important for two reasons. First, it is widely used standardized data link control protocol. सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एक वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है जिसको कि हम डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं। And secondly, HDLC serves as a baseline from which virtually all other important data link control protocols are derived. और ये एक एज अ बेस प्रोटोकॉल वर्क करती है, मीन्स हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एरर डिटेक्शन। द बेसिक आइडिया इन परफॉर्मिंग एरर डिटेक्शन इज सिंपल। We have user information that is encoded. All inputs to channel satisfy pattern or condition that is transmitted over the channel. After that, channel output and pattern checking delivers user information or set of error alarm if error is present. As in the previous figure, the information processed by an application program is encoded so that the stream that is input into the communication channel satisfy a specific pattern or condition. मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करनी है एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले उसे एनकोड करता है ताकि उसको हम कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसफ़र कर सकें एक स्पेशल पैटर्न के थ्रू। The receiver checks the stream coming out of the communication channel to see whether the pattern is satisfied. उसके बाद रिसीवर उस इनकमिंग स्ट्रीम को चेक करता है कि वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। If it is not, the receiver can be certain that an error has occurred and therefore sets an error alarm or and alert the user. और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करती है पर्टिकुलर पैटर्न को तो एक एरर अकर्ड होता है और एक एरर अलार्म सेट किया जाता है जिससे कि यूज़र को अलर्ट किया जाता है। मीन्स यूज़र को एक मैसेज सेंड किया जाता है, अलर्ट मैसेज सेंड किया जाता है। दिस सर्टेनिटी स्टीम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट नो सच पैटर्न वुड हैव ट्रांसमिटेड बाय द एनकोडर। मीन्स ऐसा कोई भी पैटर्न ऐसा कोई भी पैटर्न एनकोडर ने सेंड नहीं किया है, ये अलर्ट मैसेज यूजर को सेंड किया जाता है। नाउ वी हैव सिंगल पैरिटी चेक। द सिंपलेस्ट कोड इज द सिंगल पैरिटी चेक कोड दैट takes k information bits and appends a single check bit to form a code word which will be transmitted over the channel. सिंगल पैरिटी बिट चेक एक सबसे सिंपल मैकेनिज्म होता है एरर को आइडेंटिफाई करने का, जिसके थ्रू हम k बिट की इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसके पीछे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, मीन्स कुछ चेक बिट्स ऐड करते हैं जिसको हम कोड वर्ड कहते हैं, और उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम चैनल पर ट्रांसमिट कर देते हैं। The parity check at the receiver ensures that the total number of ones in the received code word is even. That is, the code word has even parity. और रिसीवर को ये इंश्योर करना होता है कि जो कोड वर्ड उसको रिसीव हो रहा है
उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस इवन हो, जिसको हम इवन पैरिटी कहते हैं। द चेक बिट इन दिस केस इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट, और जो चेक बिट हमने अपेंड की होती हैं ओरिजिनल डेटा के साथ, उसको हम पैरिटी बिट कहते हैं। Here the received code word is valid if it has even number of ones, otherwise it is invalid and there is some error in the received code word। और अगर received code word में number of वन even होते हैं तो हमारा डेटा में कोई भी एरर नहीं होती है, अदरवाइज जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है उसमें एरर प्रेजेंट होती है। If a code word undergoes a single error during transmission, then the corresponding binary block at the output of the channel will contain an odd number of ones and the error will be detected। अगर हम कोड वर्ड को एक सिंगल ट्रांसमिशन चैनल पर ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीवर को कोड वर्ड में एक सिंगल बिट का एरर रिसीव होता है और उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, तो हमें डिटेक्शन मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे डेटा में एरर आ गया है। मोर जनरली, इफ द कोड वर्ड अंडरगोज एन ऑड नंबर ऑफ एरर्स, द corresponding output block will also contain an odd number of ones। अगर कोड वर्ड ऑड नंबर ऑफ एरर्स से रिसीव होता है तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट ब्लॉक्स में भी ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। Therefore, the single parity bit allows us to detect all error patterns that introduce an odd number of errors। इसलिए सिंगल पैरिटी बिट के थ्रू हम वो सारे पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं, मीन सारे एरर पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ एरर इंट्रोड्यूस करते हैं। On the other hand, the single parity bit will fail to detect any error pattern that introduce an even number of errors, since the resulting code word will have even parity, which is valid code word। अगर हम दूसरे वे की बात करें तो अगर सिंगल पैरिटी बिट फेल हो जाती है डिटेक्ट करने में किसी एरर पैटर्न को जो कि इवन नंबर ऑफ एरर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रिजल्टिंग कोड वर्ड में इवन नंबर ऑफ पैरिटी होगी जो कि एक वैलिड कोड वर्ड है। Nonetheless, the single parity bit provides a remarkable amount of error detection capability। सिंगल पैरिटी बिट के थ्रू हम एरर डिटेक्शन इजीली अचीव कर सकते हैं। Since the addition of a single bit result in making half of all possible error patterns detectable regardless of the value of k। For example, this is information bit, we calculate the check bits and this is appended with the information bit and transmitted over the channel। On the second side, we recalculate the check bits, this is the received information, this is again compared with the received check bits, and if both are equal then information accepted if check bits match, means if there is no error then the information is achieved। Previous figure shows the alternative way of looking at the operation of this example। At the transmitter, a checksum is calculated from the information bit and transmitted along with the information। प्रीवियस फिगर में हमने देखा कि हम इंफॉर्मेशन के साथ चेक बिट्स अपेंड करके उसको ट्रांसमिटेड कर देते हैं ट्रांसमिटेड चैनल पर। एट द रिसीवर द चेकसम इज रिकैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, और रिसीवर के साइड पर चेकसम को दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है जो कि बेस्ड होता है उस इंफॉर्मेशन पर जो कि हम रिसीव कर रहे हैं। द रिसीव्ड एंड recalculated checksums are compared and the error alarm is set if they
डिसएग्री। और अगर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन और कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन मैच नहीं होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे डेटा में एरर आ चुका है। This simple example can be used to present two fundamental observations about error detection. The first observation is that error detection requires redundancy in that the amount of information that is transmitted is over and above the required minimum. इस एग्जाम्पल से हमने ऑब्जर्व किया कि एरर डिटेक्शन रिक्वायर होती है उस केस में जब रिडंडेंसी ज्यादा होती है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो उस डेटा में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द सेकेंड फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट एवरी एरर डिटेक्शन टेक्निक विल फेल टू डिटेक्ट सम एरर। और हम कोई भी एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करें वो कुछ ना कुछ एरर डिटेक्ट करने में फेल हो जाती है। In particular, an error detection technique will always fail to detect transmission errors that convert a valid code word into another valid code word. और अगर हम एक कोड वर्ड को दूसरे वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं उस केस में भी एरर डिटेक्शन टेक्निक फेल हो जाती है। For the single parity check code, an even number of transmission error will always convert a valid code word to another valid code word. और अगर हम सिंगल पैरिटी चेक कोड वर्ड यूज कर रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स हमेशा एक वैलिड कोड वर्ड को दूसरे वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट करती है। दिस इज द एंड ऑफ Session 4 of Component Technology. We will cover the next topics in the next part. Thank you. Happy learning, we learning.